So today we will we'll start with the 14th chapter. Last time we completed the 13th chapter of Gita. This 14th, 17th and 18th chapter, you will find one topic coming up very emphatically, and which is the most practical concept, one of the most practical concepts in Bhagavad Gita. If you hear this carefully, this concept which is presented in which chapters? 14th, 17th and 18th chapter. I'll tell you what is that concept. पहले थोड़ा suspense build up करते हैं. This concept is so practical that you can feel your life change positively the moment you hear it. It will be like those aha moments of your life. Oh yes, this makes sense. So when I was studying Bhagavad Gita, when I heard this concept, I was attending Journey of Self-Discovery course. When this topic was mentioned, the moment came out of the speaker's mouth, I felt, this is for life. इतना practical है, because all of us go through worry. Anybody here not going through worry, anxiety, stress? कैसा कोई है ही नहीं. तो सबके दुखों के लिए, चिंताओं के लिए सबसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है, और उसे आज भी हम, और ये एप्लीकेबल आज भी है. So what is that? We will discuss. So before that, 13th chapter ended with Krishna telling Arjuna about the power of material nature. He explained how we have to understand. He ends the chapter by saying that the soul has to get out of the material bondage, and how we are trapped by these material bondings, because of which we are not able to attain the supreme goal. तो 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हम परम गति, आध्यात्मिक जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम भौतिक बंधनों से पूरी तरह से बंधे हैं. तो अब ये मुद्दा उठता है, ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे अपने आप को इन भौतिक तत्वों से परे, भौतिक तत्वों से कैसे अपने आप को छुड़ा सकते हैं, और हम कैसे, पहले तो हमको ये समझना होगा कि हम फंसते कैसे हैं. हाउ आर वी ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड. तो वो ट्रैप बताएंगे अभी 14 चैप्टर में, कि हम कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस जाते हैं. हाउ आर वी ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड. एंड व्हेन यू हियर दिस यू विल एक्सेप्ट, हाँ ये मटेरियल वर्ल्ड में मैं फंसा हुआ हूँ. So what is this chapter called? 14th chapter called The Three Modes of Material Nature. ये पूरे सृष्टि में 3 modes है. Modes मतलब एनर्जी. There is force. 3 टाइप के फोर्स. तो ये 3 टाइप के फोर्स क्या हैं और कैसे हम सबको ये बांध के रखता है, ये इतना प्रैक्टिकल है कि आपको लगेगा कि चलो 4 साल से प्रोग्राम में आ रहे हैं, कम से कम एक दिन तो प्रैक्टिकल सुना. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ 14th चैप्टर. श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतो गता. Yes, so Krishna is now going to explain. Hear this again, he is saying. What is that? Text number 2. Idam jnanam upashritya mama sadharmyam agata sarge pinopajayante pralayena vyatanti cha. So the knowledge which Krishna is going to give now, see, like being a great teacher, Krishna is the best teacher. He is speaking in such a way that he wants to create some excitement. So before giving the knowledge, he is telling you what will happen if you understand this knowledge. If you get fixed in this knowledge, you will be able to attain the nature like Krishna, which means we will be Sat Chit Ananda. We will also become eternal, full of knowledge, full of bliss. So now Krishna explains that supreme knowledge. Text number 3, 4 and 5. Mama yonirmahad brahma
तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. So Krishna is saying this whole material substance is called Brahman, and Krishna impregnates it with living entities. And now Krishna reveals his identity first. Text number 4. Who is Krishna? Sarvayonishu kaunteya मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्मा महद्योनिः अहं बीज प्रदापिता. So Krishna, what is he saying now? First he has said everything is Brahman, and he impregnates the Brahman. That means who is he? अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं. तासाम ब्रह्म महद्योनि, रे ब्रह्मन में सब जीव जंतु आते हैं, पर इन सबको जीवन प्रदान कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण कर रहे हैं. अहम बीज प्रदापिता, कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर, एंड दिस मटीरियल नेचर इज द मदर. भौतिक प्रकृति माँ है. हम बोलते हैं ना प्रकृति को फेमिनिन, एक मदर का मदर नेचर बोलते हैं, मदर नेचर. मेनी टाइम्स पीपल थिंक नेचर इज गॉड, सो वी डोंट डिसएग्री, बट नेचर मीन्स somebody's नेचर. whose नेचर? Krishna's नेचर. Krishna is the father, and he is saying it here. तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता. जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना कि स्लेव, स्लेव वर्ड मतलब देयर इज सम मास्टर. विडो मतलब कोई तो उसका पति था. उसी प्रकार जब नेचर बोलते हैं तो भले हमने बोला नहीं कृष्ण का नाम, इट मीन्स दैट देयर इज सम पर्सन हु इज कंट्रोलिंग दिस नेचर, एंड दैट इज गॉड और कृष्ण. सो नाउ कृष्णा कम्स टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट व्हेन वी कम to this material energy, or when we appear in this material world, we get connection to what? हमारे साथ क्या होता है? ये अभी टेक्स्ट नंबर 5 में भगवान बोल रहे हैं. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिर्संभवा निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम्. What is Krishna saying? This material energy में there are 3 modes, there are 3 qualities, there are 3 forces, there are 3 energies. ये 3 शक्तियाँ क्या हैं? सत्वम रजस तम इति. सत्व, रजस और तमा. और जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो देहे देहिनाम अव्ययम, हम इन 3 गुणों के वश में आ जाते हैं. और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो भी श्लोक हैं 6, 7, 8, 9, 10, इसमें बताया गया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है विस्तार में. सो देर आर 3 एनर्जीज. व्हाट आर दिस 3 मोड्स कॉल्ड अगेन? सत्व, रजस एंड तमो. तो जैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो ये 3 चीज़ें हमको, ये 3 रस्सियाँ हैं. गुण, गुण मतलब गुण को संस्कृत में गुण का मतलब रोप भी है, रस्सी भी है, और गुण का अर्थ क्वालिटीज़ भी है. तो जब हम मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो ये 3 रस्सियाँ हमें बांध देती हैं. गुडनेस, पैशन. सत्व मतलब गुडनेस, रज मतलब पैशन, एंड तमा मतलब इग्नोरेंस. तो हम तीनों रस्सी से बन जाते हैं. अभी इसका एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा. अभी ये 3 रोप्स क्या है इसको समझने के पहले एक थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा. इस मटेरियल वर्ल्ड को भगवद गीता में भगवान दुर्ग भी बोलते हैं. दुर्ग, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट भी है ना एमपी में, छत्तीसगढ़ में दुर्ग. दुर्ग माँ दुर्गा. दुर्ग क्या है? दुर्ग का अर्थ क्या है? फोर्ट.
मटेरियल वर्ल्ड को दुर्ग भी कहा गया है कि एक फोर्ट बताया, एक प्रिजन बताया। और दुर्गा माता जो है वो इस यहाँ की सुपरिटेंडेंट है इस जेल की। तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, त्रिशूल था, वो त्रिशूल में 3 वो रहता है ना। तो हम भी जेल में हैं, मटेरियल वर्ल्ड दुर्ग, यहाँ की जेलर माँ दुर्गा है और वो अपने त्रिशूल से हमें सज़ा दे रही है। हम भी महिषासुर जैसे हैं। और वो त्रिशूल में वो 3 चीज़ें क्या है? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। मतलब जो पीड़ाएं हमें होती है हमारे शरीर और मन की वजह से, आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब जो हमें अपने पड़ोसियों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, ऑफिस के बॉस से जो होता है उसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और आदि दैविक क्लेश मतलब जो नेचुरल डिस्टर्बेंस है, जो हमारे वश के बाहर है, जैसे भूकंप, अकाल, बाढ़, तो ये सब आदि दैविक क्लेश में आता है। तो ये 3 समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। सबके जीवन में होता है ना, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक। आध्यात्मिक माइंड ट्रबलिंग, आदि भौतिक मच्छर ने काट दिया, मलेरिया हो गया। आदि दैविक ट्रैफिक जैम मतलब बेसिकली यू आर नॉट इन कंट्रोल, समथिंग विल कॉज यू मिजरी इन दिस वर्ल्ड। दीज 3 मिजरीज आर ऑलवेज गिवन बाय मदर दुर्गा, शी इज अ पनिशमेंट। तो मटेरियल वर्ल्ड को प्रिजन बताया गया है स्क्रिप्चर्स में। और ये सुनने को अच्छा नहीं लगेगा हमको, पर ये स्क्रिप्चर्स में कहा गया कि हम प्रिजनर हैं। सॉरी, प्लीज डोंट फील बैड। वी आर ऑल, आई एम ऑल्सो प्रिजनर, वी आर ऑल प्रिजनर्स। सो वी आर ऑल प्रिजनर्स इन दिस प्रिजन कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड। तो सब अभी कैदी साथ में आ गए, हम लोग सब कैदी हैं। तो अभी क्या हो गया है? नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस जेल। भगवद गीता, भक्ति योगा का मार्ग जो बताया गया है भगवद गीता में, ये ऐसी पद्धति है जिसमें सिखाया गया कि कैसे हम इस जेल से भाग सकते हैं, कैसे इस जेल से भागकर आज़ाद हो सकते हैं। पर पहले हमको ये जेल को समझना होगा। जेल में हम कैसे आए, क्यों आए और क्या हो रहा है इधर। देन वी कैन रन आउट ऑफ द जेल। तो जेलर कौन है इस जेल का? माँ दुर्गा। तो जब एक व्यक्ति जेल में आता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या किया जाता है? जेल में आता है तो क्या किया जाता है? विकी प्रभु, उसका मोबाइल ले लिया जाता है। हाँ, कपड़े, वो अच्छे अच्छे कपड़े जो भी रहेगा उसका सब चेंज हो जाएगा। विल बी गिवन यूनिफॉर्म, क्लोथ्स। तो हम भी जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो हमें भी कपड़े दिए जाते हैं, फॉर्म। सम पीपल गेट व्हाट ड्रेस? ह्यूमन ड्रेस। सम पीपल गेट कैट ड्रेस। सम सोल्स गेट डॉग। पद्म पुराण से जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्ष विंशति क्रमया रुद्र संख्याए पशव दशलक्षणाम। तो ऐसा करके पूरा वर्ष है जिसमें बताया गया है कि पद्म पुराण में कितने प्रकार के ड्रेस हैं मटेरियल वर्ल्ड में। जलजा नवलक्षानि, वाटर में जो एक्वेटिक्स हैं 9 लाख स्पीशीज हैं। एंड ट्रीज एंड प्लांट्स तावर लक्ष विंशति, 20 lakhs, 2 million species are trees and plants. So these are all dresses. Just like we have what? Jeans, खादी, कॉटन, ये कॉटन है, सबका अलग अलग, टेरिकॉट, तो अलग अलग कपड़ा होता है। उसी प्रकार तो बॉडीज भी अलग अलग है। ट्री का एक बॉडी है, फिशेस का एक बॉडी है। For the soul is pure. When the soul comes to the material world, these dresses are given. So 9 lakh aquatic dress, and trees and plants 20 lakh. Rudra Kramaya Sankhya, and insects there are 11 lakhs species, and animals
कितना हो गया टोटल अभी तक? 29 हो गया ना? नहीं, 40 हो गया। 11 प्लस फर्स्ट कितना था? 9 प्लस 11 20 प्लस 20 40 हो गया। 40 हो गया। अभी एनिमल्स से कितना है? 30 lakhs 20, and then there are 2 more left. What are the 2? 10 lakhs birds and reptiles and 4 lakhs human species. अब बोलेंगे अरे बाप रे, ह्यूमन स्पीशीज 4 लाख, हमको तो नहीं दिखते 4 लाख। This 4 lakh division is based on the consciousness. There are 4 lakh types of consciousness. जैसे अभी रेप्टाइल्स में क्या क्या वैरायटी है? क्रोकोडाइल, पाइथन रेप्टाइल में आता है। देखो ऐसा वैरायटी आ गया ना 2। हमको लगता है कि ह्यूमन में अगर 4 लाख मतलब 4 लाख क्या हो सकता है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल, इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 4 लाख टाइप्स। ऐसा करके टोटल कितना हो गया? 84 lakhs, 8.4 million स्पीशीज आर देयर। तो ये 8.4 मिलियन कपड़े हैं। तो एक व्यक्ति सुबह उठ के स्विमिंग के लिए जाता है, तो स्विम सूट पहनता है, फिर बाद में घर पे आता है, कपड़ा चेंज करता है, और वो डॉक्टर है, सर्जन का कपड़ा पहन के हॉस्पिटल में जाता है, सर्जरी करता है। फिर शाम को घर पे आता है, फिर ड्रामा रहता है उस दिन, उसका ड्रामा प्रैक्टिस करके ड्रामा करता है, तो ड्रामा में कॉस्ट्यूम पहनता है। तो एक दिन में उसने 3 प्रकार, और घर पे फिर ड्रामा के बाद घर पे आके घर का कपड़ा पहनता है, लुंगी और बनियान। तो उसने कितना कपड़ा पहना? 4 कपड़ा पहना दिन में, पर व्यक्ति वही है। तो उसी प्रकार हमने कितने जन्म अलग अलग योनि में बिताए, पर व्यक्ति वही है। द सोल इज प्योर, बट जस्ट लाइक अ प्रिजनर इज गिवन different dresses, we are given different dresses in this prison of material world. तो ये है पहला चीज किया जाता है प्रिजनर के साथ, क्लोथ्स। और क्या करते हैं प्रिजनर के साथ? कपड़ा तो बदल लेते हैं, उसके बाद और क्या करते हैं? उसको चेन से में बांध देते हैं, बड़ा प्रिजनर रहेगा तो। We call it as what? CCPP for things that happen material world में। Clothes, chains, punishment and purification, ऐसा करके वो हमारा याद करने का टेक्निक। तो सेकेंड थिंग इज चेन, उसको रस्सी से चेन से बांध के रखते हो, बहुत बड़ा कैदी है वो। तो हमको भी, हम आज़ाद नहीं है, जो जेल के अंदर है वो आज़ाद नहीं है। आपने देखा है उसको बड़ा, भले वो एसी का, उसको पॉलिटिकल प्रिजनर रहेगा तो उसको बड़ा एक रूम मिलेगा, एसी रहेगा उसमें, स्विमिंग पूल भी रहेगा, लाइब्रेरी भी रहेगा। ऐसे भी कैदी हैं जो पॉश जेल में रहते हैं, पर जेल है, भाग नहीं सकते। तो जेल कैसा भी हो, जेल है। तो वी आर कंट्रोल्ड, आवर फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड। और इस जेल में ये 3 चेन है जिससे हमें बांध दिया गया है। और ये 3 चेन का नाम क्या है? सत्व, रज और तम। और जब आप समझ जाएंगे कि ये 3 रस्सी कैसे हमें बांध के रख रहा है, तो आप इस जेल में खुश रहेंगे और इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो दीज आर द 3 रोप्स। गुण मतलब रस्सी। तो भगवान ने अभी यहाँ पर यही बताया है 5वें श्लोक में कि जब when the eternal living entity comes in contact with nature, he becomes conditioned by these modes। मतलब कहने का मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि जब हम इस जेल में आते हैं तो ये 3 चेन से बंध जाते हैं। ओके, तो बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस 3 modes, आई विल ब्रीफली गिव अ इंट्रोडक्शन। ये 3 रस्सी क्या है, फिर आप अपने आप को पूछिए कि मेरे को कौन से रस्सी ने टाइट बांधा है। तीनों ने हमको बांधा है, पर उसमें से कुछ टाइट रहता है। सत्व गुण मतलब गुडनेस मतलब 3 थिंग्स: पीसफुल,
satisfied, happy. ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस? पीसफुल, सेटिस्फाइड, कुछ इच्छा नहीं, ऐसा मूड आता है और वेरी वेरी कंटेंटेड. ये भी रस्सी है, क्योंकि भौतिक जगत में रखता है हमें. फिर दूसरा रस्सी क्या है? रजस. रजस मीन्स पैशन. पैशन मतलब एक्शन, क्रिएशन, हरी. आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? सत्वगुण मतलब शांति, सुख, एक तृप्ति, एक सेटिस्फैक्शन. रजोगुण मतलब जल्दबाजी, सृजन करना, क्रिएशन करना, उत्पन्न करना किसी चीज को, और एक्शन. ओके, क्लियर? सो इफ यू आर मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ where you are choosing action, that means you are allowing yourself to be bound by passion, rajogun. If you choose to be happy in your situation, then you are choosing what rope? Sattvagun. और तीसरा कौन सा है? तमस. तमस मतलब ignorance. तमस मतलब अंधकार, darkness, sleep, निद्रा, आलस. Nidra, alas. Basically, ignorance means three things: helpless, madness, and destruction. So we'll repeat. तो ये 14 चैप्टर अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आपको कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति आपको या कोई भी परिस्थिति आपको मिजरेबल नहीं कर सकता. You will be in control of your life. क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर आपका नियंत्रण हो? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको दुख नहीं पहुंचाए? कभी कभी हम बहुत दुखी रहते हैं ये सोचकर कि हमारे जीवन में लोग हमें बहुत तकलीफ दे रहे हैं, पर हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता जब तक हम स्वयं उसका निश्चय नहीं करते. अगर हमने समझ लिया कि अभी मैं रजोगुण में हूँ, सो यू आर सेफ. एटलीस्ट अवेयरनेस इज अवर मेन. भगवत गीता का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है मालूम है? भगवत गीता हमारा अवेयरनेस बढ़ा देता है. जैसे मुझे याद है जब मैं भक्त बना तो मैं ऐसे बातें कर रहा था, मैं खुद इम्प्रेस हो गया. जैसे एक दिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, तो एक डिवोटी ने बोला, प्रभु आप इधर आ सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, राइट नाउ आई मीन तमोगुण. मतलब ये भी मुझे समझ रहा था कि मुझे नींद आ रहा था, मैं बहुत सोया था दोपहर को 4 घंटा. मुझे इतना समझ था कि मैं अभी तमोगुण में हूँ. हम लोग अधिकांश बार ये समझ भी नहीं पाते कि मैं तमोगुण में हूँ. वो रस्सी जो जैसे एक पपेट, एक कठपुतली को वो नचाता है ना 3 रस्सी से, तो हमें क्या है, ये 3 रस्सियाँ हमें नचा रही हैं और हम नाच रहे हैं. वी आर लाइक अ पपेट विच इज स्ट्रंग बाय 3 थ्रेड्स एंड वी आर डांसिंग, कंट्रोल्ड बाय रजस, तमस एंड सत्व. एंड हु इज द पपेटियर? दुर्गा. मदर दुर्गा. पूरा हम लोग पूरा फंस रहे उसमें. तो सत्वगुण में क्या होगा? व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट हैपन इन सत्वगुण? पीसफुल, हैप्पी, सेटिस्फाइड. रजोगुण? क्रिएशन, एक्शन, हरी. एंड इग्नोरेंस? डिस्ट्रक्शन, मैडनेस, स्लीप, लेजीनेस, हेल्पलेस. तो अभी आपको समझ गया इस दुनिया में किधर क्या एनर्जी चल रहा है. When you come inside a temple, you feel peaceful. सत्वगुण का प्रभाव रहता है. और सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, ट्रैफिक जैम, लोकल ट्रेन, एक्शन, हरी, पैशन, ऑफिस, मूवी थिएटर्स, कॉलेज कैंपस, व्हाट इज हैपनिंग देयर? रजस. और रात को दारू के अड्डे पे शराबी लोग क्या करते हैं? तमोगुण में रहते हैं. लिकर बार्स, प्रोस्टिट्यूट हाउसेस, डार्कनेस. उनका लाइफ शुरू होता है 8 बजे के बाद. कंप्लीट तमोगुण का वो लाइफ. ये सबको एक्सपीरियंस है इसका. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो जस्ट इमेजिन यू अंडरस्टैंड दीज 3 रूट्स. मेरे को इसका ना प्रैक्टिकल रियलाइजेशन रोज मिलता है. मैं मंगलारती अटेंड करता हूँ. इट इज़ लाइक बियॉन्ड गुडनेस. एक वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. गुडनेस के ऊपर भी एक मोड है. इतना आनंद आता है डीटीज के सामने, फ्रेग्रेंस. फिर उसके बाद 5:40 को मैं निकल जाता हूँ वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए. कभी
चौपाटी बीच, वेव्स आता है, तो पहले मंदिर में कौन सा गुण है? वो शुद्ध सत्व, सत्व के ऊपर है वो एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल, ऐसा कीर्तन, आनंद आता है एक अलग ही लेवल पे. देन यू गो टू चौपाटी बीच, वहाँ से वेव्स आता है, फ्रेश, एंड दैट प्लेजेंट ब्रीज एंड दैट द फ्रेग्रेंस ऑफ द सैंड, you feel mode of goodness, peaceful. And then you look outside and then you see there are couples having public display of affection even early morning, because Mumbai में space का जगह का कमी है. So then you see अभी इधर good, you can see it, goodness, passion. और आगे जा रहे हैं, आगे आपको दिख रहा है चौपाटी बीच में सब कौवे आके, रात को सब लोग उधर भेलपुरी सेवपुरी खा के सब उधर गंदा करके आते हैं, सब कौवे आके, कुत्ते आके उधर खा रहे हैं, आवाज़ चल रहा है. एंड यू कैन सी ह्यूमन एक्सक्रीटा लाइंग, पीपल हैव पास स्टूल, बिकॉज यू कैन सी ऑल, यू कैन सी इग्नोरेंस. तो यू आर रनिंग, यू कैन सी इग्नोरेंस, पैशन. सो नाउ यू चूज what choice you make that will bind you. So I choose what? I choose none. I run back to temple. Danger है, तीनों danger है. But this is better. But this doesn't come free. This comes with that package also. I go to Hanging Garden in the evening sometimes. तो Hanging Garden में ऊपर जो forest इतना peaceful है. When you go बाबुलनाथ के मंदिर से Hanging Garden तक जब climbing करते हो, ऐसा लगता है कि अब अभी लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई में हैं. वो मुंबई लगता ही नहीं है, ऐसा पूरा जंगल, आपको लगता है कि आप कहीं तो गांव में गए. वो घर भी ऐसे ही है उधर, झोपड़ जैसा, पूरा गुडनेस. और फिर थोड़ा ऊपर, वो थोड़ा बाहर देखते हैं वो जंगल के नीचे, ट्रैफिक, इवनिंग ट्रैफिक, पैशन. यू कैन इमीडिएटली सी द डिफरेंस. गुडनेस, पैशन, goodness. And ignorance, you can see people getting drunk, taking drugs, smoking, playing जुआ. वहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, these women, they have nothing to, they have hardly any clothes on their body, they are so poor, but they are 500 rupees, 100 rupees, they are throwing, they are having. You can see ignorance, rajogun, sattvagun. So you can always see these three energies. You can feel it in your life also. Powerful है ना concept? और ये 5,000 साल पहले भी सही था, आज भी है. तो यही भगवान बता रहे हैं कि दिस इज हाउ ही बिगिन्स द 14 चैप्टर. द 3 मोड्स आर बाइंडिंग अस. ये 3 रस्सियों ने हमें बांध के रखा है. सो बेसिकली व्हाट कृष्णा इज सेइंग इन 17th, 18th एंड 14th चैप्टर इज द चॉइसेस यू मेक. इफ यू चूज मोड ऑफ गुडनेस, देन यू आर बाउंड बाय दैट. नेक्स्ट टाइम when you are put in a situation, you will be easy for you to choose mode of goodness. अगर आपने रजोगुण को अभी स्वीकार किया, तो अगली बार जब आप कोई परिस्थिति में रहेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से रजोगुण को ही चूज करेंगे. जैसे उदाहरण के लिए किसी ने ड्रग्स ले लिया, मतलब उसके पास चॉइस था ड्रग्स लेने का नहीं लेने का, तो पहला उसने चॉइस मोड ऑफ इग्नोरेंस ले लिया और 10 बार सोचा, लूँ नहीं लूँ, हाँ नहीं, हाँ नहीं. उसके अंदर चेतना बोल रही है नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं. उसने ले लिया. तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद वापस ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आएगी जब उसके पास सामने ड्रग्स आएगा, और तब उसको इतना संघर्ष नहीं होगा ना बोलने के लिए, वो आसानी से हाँ बोल देगा. और तीसरी बार और आसान लगेगा उसको. तो हम जिस मोड को, जिस एनर्जी को चूज करते हैं, फिर वो हमें बार बार पहले तो आकर्षित करती है और बाद में पूरी तरह से बांध देती है. तो जब हम पूरी तरह से बंध जाते हैं उस मोड से, फिर हम बाहर ही नहीं निकल पाते. ऐसा लगता है कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते. उसका समाधान दिया है भगवान ने. ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, पर पहले समझना तो चाहिए कि कैसे हम फंसते हैं. सोल्यूशन तो बाद में आएगा. सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. सो गुडनेस में यू कैन टेक बेस्ट डिसीजंस. क्यों? यू आर मेंटली पीसफुल, स्टेबल. पैशन मतलब एम्बिशियस, वेल्थ, नेम, फेम, ग्रीड, ये सब पैशन में आता है. एंड एवरीथिंग कैन बी इन 3 मोड्स. कपड़ा भी 3 गुणों में हो सकता है.
फ्रेश क्लोथ्स, कौन से गुण में आ गया? फ्रेश, धोया हुआ, क्लीन। जो एक हफ्ते से आप वही पहन रहे, टी शर्ट और ट्राउजर्स, धोया नहीं, तो फैशन। और एक महीने से वही है। जैसे हॉस्टल में, बहुत सारे हॉस्टल में लोगों का एनुअल बात होता है साल में 1-2 बार, तो उनका मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कपड़ा, खाना पीना भी ऐसा हो सकता है, नहीं? फ्रेश खाना रहेगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ऑल कम्स अंडर सत्वगुण का आहार है वो। रजोगुण का आहार में जिसमें मिर्ची, मसाला, ऐसा जोरदार तड़का लगा के एकदम। एंड देन इग्नोरेंस, मतलब जो फ्रिज में रखते हैं और एक हफ्ते तक खाते रहते हैं उसको फिर निकाल के डीप फ्रीज में डाल के, ऐसा करते हैं ना। जैसे हमारे एक डेवोटी अमेरिका गए थे, वहाँ पे एकादशी का प्रसाद खिला रहे थे उनको अच्छा लगा। तो बाद में वो फिर वापस टूर पे गए, घूम के आए, फिर वापस 15 दिन बाद उधर वही सिटी में आए, तो उनके घर पे प्रसाद ले रहे थे। बोला, अरे कितना मस्त बनाया आज। अरे लास्ट एकादशी में आपके घर पे ही बनाया था। उन्होंने बोला, प्रभु लास्ट एकादशी का ही प्रसाद है। हमने, प्रभु जी ने बोला, वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था, वो बहुत बनाया था, डीप फ्रीज। तो वहाँ पे रखते हैं वो, ऐसा मैंने सुना है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, कि मैंने सुना है कि वो डीप फ्रीज में आप कितने दिन भी रख सकते हैं। दैट इज एक्चुअली इग्नोरेंस। फ्रेश फूड इज सत्वगुण। ऐसा करके हर चीज़ का, म्यूजिक, एकदम प्लेजेंट म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, फ्लूट, विच क्रिएट्स अ काइंड ऑफ पीस, दैट इज सत्वगुण म्यूजिक। रजोगुण म्यूजिक में क्या आएगा? प्यार मोहब्बत के गाने, लव सॉन्ग्स, है ना? आपको समझ गया रजोगुण के गाने क्या हैं और सत्वगुण के गाने क्या हैं। और तमोगुण मतलब एसिड रॉक म्यूजिक, वो देखा है, ऐसा आवाज़ आता है कि जैसे हमारे बिहार के हमारे एक कौन से, वो कोई तो फॉरेन न्यूज़पेपर की रिपोर्टर इलेक्शंस के समय वो घूम रही थी इंडिया में, बिहार के गांव में गई। वो शॉक हो गए कि एक बिहार का गांव वाला कटिया पे लेटा है और उसके खेत के उसके बाहर उसने जोरदार लाउड स्पीकर में लेटेस्ट कुछ तो रॉक म्यूजिक लगाया था। तो वो शॉक हो गए कि ये गांव वाले का कपड़े से तो ऐसा अनपढ़ लग रहा है और इतना सिंपल आदमी लग रहा है, इसको इतना बड़ा फ़ैन है ये संगीत का। कुछ तो वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत हाई ब्लेजिंग साउंड में था। तो माता जी ने जाके पूछा, कह रहे आप गांव के, आपको इतना अट्रैक्शन है म्यूज़िक के प्रति? तो उसने बोला, मुझे पता नहीं आवाज़ क्या है, पर जब से मैंने लगाया तो मेरे खेत में कौवे और जैकल, लोमड़ी कुछ आता नहीं है, तो मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, तो मैंने म्यूज़िक लगाया। तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस म्यूज़िक, परफेक्ट म्यूज़िक था, उसको म्यूज़िक का कोई नॉलेज नहीं था, पर उसको समझ गया कि इससे फ़ायदा है मुझे। सो म्यूज़िक कैन बी इन 3 मोड्स। कपड़े भी मैंने देखा है, वो कुछ कपड़े रखते हैं पत्थर के ऊपर, उसको गंदा करते जानबूझ के, फिर उसको फाड़ते हैं, मालूम है, होल्स बनाते हैं, जीन्स, ऐसे भी कुछ कपड़े रहते हैं, और उसको महंगा भी रहता है बहुत। तो दिस आर ऑल क्लोथ्स, म्यूजिक, फूड। टाइम ऑफ द डे कैन बी इन 3 मोड्स। अर्ली मॉर्निंग, you feel like going to temple, you feel like giving charity, you feel like being nice, mode of goodness is prevalent. But after sunrise, then the action starts. People traveling, stock markets, colleges, so offices, all these things are passion, action, creation, hurry. And night time, mode of ignorance. And mode of ignorance is all 3 are needed. If you want to sleep, you have to invoke tamogun, नहीं तो नींद नहीं आएगा, अच्छा नींद। सो ऑल 3 आर नीडेड। रजोगुण चाहिए। जब हमने प्रीचिंग शुरू किया 2012 में, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, तो मुझे आई वॉज वेरी वेल अवेयर दैट दिस इज रजोगुण, पैशन, यू नो। विदाउट पैशन देयर कैन बी नो क्रिएशन। मेंटेनेंस के लिए सत्वगुण लगता है और डिस्ट्रक्शन के लिए, इसीलिए ब्रह्मा जी हैज टू इन्वोक पैशन, लॉर्ड शिवा बिकॉज ही हैज टू डिस्ट्रॉय, ही हैज टू इन्वोक तमोगुण, and Vishnu's job is to maintain, he represents the सत्वगुण। इस तरह से 3 गुणों का निरंतर हमारे जीवन में प्रभाव है। तो आपको समझ गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आर द 3 मोड्स? रिवीजन, सत्व और तमोगुण। तो सत्वगुण का उदाहरण, सत्वगुण में क्या क्या होता है?
happiness, satisfaction, contentment. Rajogun, action, creation, hurry, ignorance. Tamogun, आलस, distraction, madness, helplessness, sleep, intoxication, सब तमोगुण में आते. So when you choose one mode, what happens? First choice you make, then it binds you. Then you get trapped more by that, and then eventually it appears as if you are helpless. So now you would like to hear what Krishna has to say? Let us see. Text number 6. Tatra sattvam nirmalatvat prakashakam anamayam sukha sangena badnati jnana sangena chanaga. So this also basically is very good, if you are in mode of goodness, you can take decisions, you are peaceful. But on a deeper level, this is also binding. Generally those who are in mode of goodness, they never become devotees also. They are like, हाँ हमारा अच्छा चल रहा है, peaceful. भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे. तो भक्ति भी नहीं करते हो, तो ज़्यादा ही सुखी रहते हैं, शांत. Like I am from South India, so I know. हमारे घर में फैमिली में मैं देखता हूँ सत्वगुण का बहुत प्रभाव रहता है. वो लोग सब अंकल आंटी, बहुत बार बोला उनको, हाँ ठीक है बेटा जो कर रहा है करते रहो. They will get up early, they will have a very peaceful, happy life, but no bhakti. So they will remain in material world. Again and again they will get sattva-gun, again another body. So they will keep traveling in this material journey. But it is better than the other two modes, because that is a platform to go high. But वहाँ पे भी trap है, वहाँ पे भी trap है. So let's see what Krishna says about next verse, 7th verse. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगा समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. So mode of passion में क्या है? Desires and longing, hankering. I want it, I want this. Desperate. ऑब्सेशन. और तमोगुण में लैमेंटेशन रहता है, अरे नहीं मिला, मैं बेकार हूँ, ना, लाइक दैट. लेट्स सी टेक्स्ट नंबर 8. तमस् अज्ञानतं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. Clear, all of you now? Sattva, Rajas, Tama. Very clear. Now in one verse, Krishna summarizes all three in a very beautiful way. Text number 9. Sattvam sukhe sanjayati Raja karmani bharata Jnanam avritya tu tamaha Pramade sanjayatuta. See, all three are not best for spiritual life. To go back out of this jail. जेल से बाहर जाने के लिए तीनों डेंजर है, पर तीनों का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सत्वगुण कैसे बांधता है हमें, किससे बांधता है? इस श्लोक में क्या बोला है? हैप्पीनेस से बांधता है. रजोगुण कैसे बांधता है? एक्शन से बांधता है. और तमोगुण कैसे बांधता है? मैडनेस. रिमेंबर, हैप्पीनेस, एक्शन एंड मैड. देयर आर सम पीपल हु आर वेरी हैप्पी एंड पीसफुल. मतलब दे से भक्ति नहीं चलेगा, हरे कृष्ण. दे आर लाइक नॉट इंटरेस्टेड. They are peacefully living in their life. But that is also not good. That is binding them. And some people are super busy. अरे टाइम नहीं है, इतना बिजी हूँ मैं, टाइम नहीं है भक्ति के लिए. They keep talking like that. Passion. And some people are क्या भक्ति, they are completely mad. वो समझते ही नहीं है. They are in a completely different world. See, I have gone for book distribution for 5 years. लोकल ट्रेन में, मुंबई के लोकल ट्रेन में हम लोग भगवद गीता जाके बेचते थे. जैसे कंगी बेचते हैं ना, कंगी वो बेचते,
वो पर्स बेचते, वैसे हम लोग भी उनके साथ बेचते थे और उनके साथ छुट्टा भी एक्सचेंज करते थे, 500 को छुट्टा. सो यूज्ड टू थिंक आई एम लाइक वन ऑफ देम. वी यूज्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम. तो उसमें ना सब दिखता था, तीनों मोड का अमेजिंग मूवीज दिखता था रोज. कुछ लोग बुक देखते ही साथ थैंक यू नहीं चाहिए, वेरी हैप्पी मोड ऑफ गुडनेस. कुछ लोग है नो टाइम और गेट अ जॉब, यू नो, एंग्री. एंड सम पीपल आर लाइक इन अ स्टूपर, दे कीप लुकिंग एट यू लाइक दिस. तो आई नो तमोगुण वाला ये तो लेगा ही नहीं, इसके बाद टाइम वेस्ट है. सो यू नो वेयर टू गो, हाउ टू whom to give book. दिस थ्री आर इंटेंसली, ये पूरा दुनिया को इसने ये तीनों ने बांध के रखा है. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृष्णा इज सेइंग हियर, सत्वगुण का कंडीशनिंग इज व्हाट, वन वर्ड, हैप्पीनेस. रजोगुण का एक्शन एंड कर्मा और एक्शन, एंड इग्नोरेंस, मैडनेस. एक बार मैंने क्लास दिया था ये 3 मोड्स के ऊपर. तो क्लास में हमारे एक डिवोटी थे जो बॉलीवुड में बहुत उनका वो था इंटरेस्ट, और बॉलीवुड का बहुत, वो बॉलीवुड के भक्त थे वो. तो क्लास के बाद मुझे बोले, प्रभु जी मैं वो पूरा समझ गया 3 मोड्स, बॉलीवुड बेस्ट एग्जाम्पल है. मैं बोला कैसे? 1950s 1960s का मूवी वो सत्वगुण में था कि हीरोइन वो दूर रहेगी, हीरो उधर रहेगा, और वो ऐसा स्माइल करेगी, नीचे देखेगी तो हीरो ऊपर देख के गाना गाएगा, फिर 2 पक्षी को दिखाएंगे. तो वो पूरा सत्वगुण में रोमांस होता था. फिर प्रभु जी 80s और 90s में द बोल्ड एंड ब्यूटिफुल वुमन वुड ल्योर द मैन एंड शी वॉज वेरी एक्सप्रेसिव एंड पैशनेट. दैट वाज द टाइम ऑफ रजोगुण. मैं बोला अभी क्या है प्रभु? अभी तो प्योर तमोगुण. देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर द इमेजिनेशन. ऑल दैट यू कैन इमेजिन एंड मोर देन दैट इज डायरेक्टली विजिबल ऑन द स्क्रीन. सो इट इज तमोगुण. तो आई सेड वाह, यू हैव अंडरस्टूड भगवद गीता नाइसली, आई टोल्ड यू. जिसको ये समझ गया मतलब उसको भगवद गीता का 14 चैप्टर समझ गया. रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण. So like this 3 modes Krishna has explained. Now Krishna explains what happens to us. हमारे जीवन में रोज क्या होता है उसके बारे में अगले श्लोक में बोलते हैं. टेक्स्ट नंबर 10. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. What is Krishna saying? There is competition for supremacy by whom? Sattva, Raja and Tama. Sometimes Sattva is higher, it suppress. Sometimes you feel like that. कभी आपको लगता है अरे अभी ये सब पिक्चर इतना नहीं देखने का, अभी सब भक्ति करने का बस अच्छे से. तो आपको लगता है कि मैं बहुत एडवांस्ड हूँ. सॉरी, सत्वगुण अभी विजयी हो गया है. बाद में आपको कभी लगेगा यू नो यू गेटिंग एंग्री एट समवन ऑफिस में, और यू गेटिंग लस्टी. What is happening? Passion has taken over. So like this, there is a competition. Generally what happens, the lower modes pull you down. If you always try to be in Sattva Gun, Rajo and Tamo will pull you down. If you are in Rajo Gun, then Tamo will pull you down. If you are in Tamo Gun, then Tamo Gun will lead you further down. So why we tell devotees, आप Sattva Gun में रहो, Sattva Gun में रहो. क्यों बोलते हैं? क्योंकि Sattva Gun में हम नहीं रह सकते. Sattva Gun में रहेंगे तो Rajo Gun में जाएंगे ही. पर अगर हम रजोगुण में रहने का ट्राई करते हैं लाइफ पर पूरा दिन, तो तमोगुण में जाना टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. सो दैट्स व्हाई वी टेल डिवोटीज कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुना है बहुत बार बोलते हैं, प्रभु जब जल्दी उठिए, सुबह जपा कीजिए. क्यों बोलते हैं हम? क्यों लोगों को बोलते हैं कि आप 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, मंगलारती. सत्वगुण का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्योदय के 1-1.5 घंटा पहले, क्योंकि उस समय सत्वगुण का प्रभाव अधिक रहता है. उस समय माइंड पीसफुल रहता है. तो उस समय जो हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं उससे पूरा दिन हमारा फ्रेश रहता है. हम अपने खाने पीने का, आहार का क्यों बोलते हैं आप सत्वगुण में रहिए? क्योंकि स्वाभाविक रूप से रजोगुण आपको खींचेगा नीचे. ग्रेविटी फोर्स जो है मटेरियल वर्ल्ड का नीचे खींचेगा. ये मटेरियल वर्ल्ड जेल है, जेल में हमको रहना ही पड़ेगा. तो बाहर निकलना है तो पहले तो सत्वगुण में आना पड़ेगा. तो अभी आप अपने जीवन को सत्वगुण में कैसे ला सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें करनी है उसके लिए. बट एसेंस इज फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस एंड फॉलो अ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल. सत्वगुण में आप रहेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे और आपके आसपास जो लोग आपके निकट के दोस्त बनेंगे वो भी सुखी रहेंगे. रजोगुण में रहेंगे तो हमेशा झगड़ा चलता रहेगा. एंड तमोगुण इज मैडनेस, एनीथिंग कैन हैपन. जैसे
आपको समझना है आपका लाइफस्टाइल, तो एक स्टोरी से समझो आप। 3 भाई थे, सत्व, रजस और तम। तो एक गांव में रहते थे। तो गांव से वो रोज जाते थे शहर में, वो हैट सेलर, टोपी बेचते थे वो। तो एक दिन सुबह सुबह तमो वो निकल गया, तो शहर की तरफ आ रहा था, तो उसने वो थक गया, तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया उसने। और जब उठ के देखा जाने के लिए वापस, देखा कि उसका बैग खाली है। उसके बैग से सारे जो टोपी थे वो बंदरों ने, पेड़ पे सब बंदरों ने ले लिया। तो इसने देखा, अरे मेरा टोपी सब चला गया, मैं अभी शहर में जाके बेचने वाला था, पैसा कमाने वाला था, आज कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मेरा तो भाग्य ही खोटा है, मेरा लाइफ तो पूरा बर्बाद हो गया। रोने लग गया। फिर जाके कहीं तो गया शराब की दुकान में, शराब पिया उसने भूलने के लिए, और शराब पी के उधर ही टुन हो गया, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। रजो आया थोड़ी देर के बाद, वो घर से निकला बैग लेके, वो भी आके उस पेड़ के नीचे सो गया। जब उठा तो देखा उसका भी सब हैट टोपी गायब है। फिर उसने क्या किया, बंदरों को देखा, बोला वापस लौटाओ, मेरा टोपी वापस दो, चिल्लाने लगा जोर से, गंदा गंदा गाली देने लगा। बंदरों ने दिया नहीं, तो उसने बोला मैं बदला लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और थक गया बोल बोल के, इतना चिल्ला चिल्ला के। फिर चला गया वो भी, और वो प्रतिशोध की भाव में गया, मैं अभी आके कुछ करूंगा, ये पेड़ को आग लगाऊंगा, आप सबको मारूंगा बोल के चला गया। फिर कुछ देर बाद कौन आया, सत्व आया, वो भी घर से निकला, वो भी वही पेड़ के नीचे सोया। और जब वो उठा तो उसने देखा उसके पेड़ के सारे टोपी, उसके बैग के सारे टोपी भी गायब। तो उसने क्या किया, उसने सोचा 2 मिनट, ठंडे दिमाग से सोचा क्या करना है। फिर उसने अपने जेब से उसका जो टोपी था वो निकाला, फिर उसको पहना, और बंदरों को एक्शन किया, थोड़ा इरिटेट किया, तो बंदर भी आवाज़ करने लगे। फिर उसने अपने हाथ को अपने सर पे डाला, वो टोपी को निकाल के नीचे फेंका। जैसे नीचे फेंका तो बंदरों ने भी फेंक दिया। जैसे बंदरों ने फेंका तो उसने सब जमा किया, तुरंत सब टोपियों को अपने बैग में डाला, और चुपचाप शहर गया, शहर में बेचा, प्रॉफिट कमाया, घर पे आ गया, जल्दी सो गया, और सुबह उठा वापस फ्रेश हो गया। फिर सुबह उठ के जब करने लगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यू अंडरस्टूड 3 brothers, रजो तमो सत्व, ऑल 3 फेस्ड सेम प्रोवोकेशन। तीनों एक ही परिस्थिति में थे, आपको समझ रहे हैं, पर तीनों का जो वो था रिएक्शन वो अलग था कि नहीं। तो अभी हमारे जीवन में आप देखेंगे अधिकांश लोगों के जीवन में सेम प्रोवोकेशन है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स है, प्रभु इतना प्रॉब्लम्स, और वो जब सामने जब बोल रहा है, he doesn't know that we also have the same problems, or others also have, he thinks he has the biggest problem. You will see that most people have same problems, but some people respond, they choose rajogun, some people choose सत्व गुण, सम पीपल चूज, लाइक हैट सेलर का स्टोरी हमेशा याद रखने का। तीनों के पास एक ही सिचुएशन आया था, पर तीनों ने अलग अलग रिएक्ट किया। तो कैसे हम रिएक्ट करते हैं उससे आगे का हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। सो नाउ द $1 billion क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू वुड प्रिफर टू बी प्राइमरीली in which mode? सत्व, राइट? कितने लोग तमोगुण में रहना चाहते हैं? कितने लोग रजोगुण में, सत्वगुण में? ठीक है। सो नाउ यू वांट टू नो हाउ यू कैन बी इन सत्वगुण। ओके, लेट अस डू सम इंटरैक्टिव। क्या लगता है सत्वगुण के लिए पहला क्या करें हम? हाँ, 1 मिनट, शिवम जी, वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग, कितने बजे? 2 बजे, 5 बजे? हाँ, 5 बजे अच्छा लग रहा है, 5, 4:30। कुछ लोग ऐसा होता है बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कभी 2 बजे उठ जाते हैं। 5 o'clock इज गुड टाइम, 5, 5:30, 4:30, 4 o'clock, just 2 hours before, 1.5, 2 hours before Mangala sunrise. So this is the first thing we can do, get up early in the morning. और क्या कर सकते हैं सत्वगुण में रहने के लिए? प्रिपेयर्स गुडनेस वाला फूड, प्रिफर गुडनेस वाला फूड, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेस स्पाइसी,
मुश्किल है ना? पर आपको अभी देखो, यू नो द रिएक्शन, यू हैव टू बी हैप्पी, सत्वगुण। सब बोलते हैं आपको खुश रहना है, खुश रहना है। रजोगुण में जो आनंद है ना, रजोगुण में भी आनंद है, पैशन, क्रिएशन, एक्शन, हरि में भी आनंद है, बट दैट इज 17 चैप्टर यू विल रीड, कृष्णा विल टेल एतदग्रे अमृतम इव परिणाम विषोपम। ये शुरू में अमृत जैसा लगता है, बाद में विष जैसा जहरीला, बहुत दर्द, बहुत दुख देता है। और जो सत्वगुण का आनंद है वो स्टार्टिंग में थोड़ा तपस्या लगता है, एतद अग्रे विषम हिव परिणामे मृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सत्वगुण का आनंद वैसा है कि शुरू में थोड़ा लगता है कि तपस्या, बाद में अमृत जैसा नेक्टर लगता है, आनंद आता है। और माइंड इज ऑल्सो पीसफुल। तो सुबह उठना जल्दी, नॉन स्पाइसी खाना, प्रसाद, जप करना, पूजा करना, क्लीन करना घर को, कीप इट क्लीन, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। तो दिस इज सत्वगुण, टिप्स एंड टेक्निक्स टू बी इन सत्वगुण। ओके, बिफोर वी गो एड, व्हाट मोर टिप्स विल रिकैपिटुलेट। सत्वगुण में क्या क्या होता है? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस। रजोगुण एक्शन, क्रिएशन, हरि। तमोगुण हेल्पलेस, मैडनेस, लेजीनेस, डिस्ट्रक्शन, स्लीप, इंटॉक्सिकेशन। तो अभी आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल हैप्पीनेस, देन वी हैव टू बी इन सत्वगुण। तो आप बोलोगे प्रभु जी बट हाउ विल आई लिव हैप्पीली, यू नो वी नीड मनी, वी नीड दिस, वी नीड दैट। ओके, देन यू बी रेडी टू पे द प्राइस ऑल्सो। Then don't complain. Don't say I want to be happy. There are people I know with less salary also, they are happy, they are peaceful. You have to choose your mode. There are people who live in farm, there are people who live in villages. सनत कुमार प्रभु मुझे बोल रहे थे लास्ट वीक, वो गांव में प्रचार करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे भी लोग उन्होंने मिले हैं लोगों से जिनका एनुअल इनकम 10,000 रुपीज़ है आज के तारीख में। Annual income 10,000, and then he told me about 2 families whose annual income is 4,000 rupees. I mean, I don't believe it, प्रभु। तो बोले मेरे को भी विश्वास नहीं होता, पर मैंने देखा है अपने आंखों से। Of course, that is extreme. I'm not saying we should be like that. It's not practical also. But we all can understand, na, what is causing me distress, what is increasing my hankering, lamentation, what is increasing the lower modes, what is making me miserable. You are your best judge. Take some time and slow down. Slow down, be silent, spend some time, then you will be in Sattvagun. Sattvagun के लिए generally I tell people, when people ask me project practically Sattvagun में कैसे रहने का, I tell 5 things. I don't know if it sounds practical to you, but see if it makes sense. You don't get angry with me, but this is whenever I followed these 5 ना, whichever day मैंने 5 चीज़ किया है तो मैं सत्वगुण में रहा हूँ। पहला prayer, you know, like spending some quality time in front of the deities, offering prayer. Basically it slows you down, वो ब्रेक लग जाता है आपकी गाड़ी में। दूसरा प्राणायाम, प्राणायाम again means slow down. प्राणायाम के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है ना, अब भागते भागते प्राणायाम नहीं कर सकते। मैंने देखा है लोग ट्रेन में भी सब नाक दबाते रहते हैं। एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, यू नो, जस्ट सिट इन सम प्लेस, इनहेल, जस्ट रिलैक्स। पीपल, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी सरप्राइज्ड। सम ऑफ यू हैव नेवर डन प्राणायाम, ट्राई टू डू। घड़ी रखो, बोलो मैं अभी 10 मिनट इनहेल एक्सेल करूंगा, 1 मिनट के अंदर आपका आंख खुल जाएगा, आप कुछ करने लग जाएंगे। इतना रजोगुण का प्रभाव है आपके जीवन में कि आप 10 मिनट भी शांति से एक जगह पे नहीं बैठ सकते। ये बहुत सारे लोगों का एक सामान्य, एक कॉमन फिनोमिनन है आजकल। नहीं बैठ सकते, बोलेंगे हम ट्रेन में करेंगे। मल्टीटास्किंग का आदत लग गया हमको। प्राणायाम करके देखो, बैठो एक जगह पे करो, देन यू विल रियलाइज हाउ मच योर माइंड इज इन रजोगुण। यू विल रियलाइज व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड टू स्पेंड 10 मिनट लुकिंग एट द ट्रीज, द बर्ड्स चर्पिंग, वो थोड़ा सत्वगुण में जैसे आप आएंगे, आपको माइंड विल रिबेल, गेट अप, गो, रन, अर्न, डू दिस, डू दैट, फोन कॉल,
रजोगुण इज डेडली, ऐसा आपको फंसा के रखता है. एंड इट मेक्स यू, इट टेल्स यू, ओ यू आर डिवोटी, यू आर टू डू सो मच फॉर कृष्णा. फॉर कृष्णा नहीं रहता है वो, वी कीप डूइंग, बट वो कृष्णा कभी रहता नहीं पिक्चर में. आवर माइंड चीट्स अस. सो दैट टाइम यू शुड पॉज बटन दबाने का लाइफ का. थोड़ा प्राणायाम करो, प्राणायाम इज गुड. ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा, प्रेयर हो गया. दूसरा प्राणायाम हो गया. तीसरा पेन डाउन, एक पेपर और पेन लो और प्रेम से लिखो, अपना दिल की बात लिखो, प्रेम पत्र लिखो कृष्ण को. You know, write. This is Smaranam. Prabhupada says in one lecture in 1973, this is Smaranam, writing from your heart. What you have understood in life. Each one of us here, all of you have realizations. You may not be like, you cannot say, हम तो कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद, गुरु महाराज. नहीं, आप भी बहुत बड़े हस्ती है बाबा. आपके अंदर भी साक्षात्कार है. आप भी वही जीवात्मा है जो भगवान के अंश हैं. आपके हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम है. उसे जागृत करो. लव, एक्सेप्ट योर सेल्फ. यू आर नाइस, यू आर लवेबल. Write about your realizations in bhakti. See how happy you feel. See how contented you feel. See how mode of goodness comes. Because that forces the mind to slow down when you write ना. क्योंकि अभी जैसे आप कार में फुल स्पीड जा रहे हैं तो बाहर का जो नज़ारा है वो उतना ईजी लगता है. बट when the car slows down you can see things. ये ऐसा है, ये ऐसा है. उसी प्रकार दिन भर हम इतना फास्ट भाग रहे हैं कि हमारा माइंड कुछ समझ में नहीं आता. पर जब हम राइटिंग करते हैं पेन्स और पेपर से, it is like watching from the car window which is slowing down. So pen down, इसको pen down बोलते हैं. Writing something. Third, fourth is be peaceful. Go for a nature walk. तो नेशनल पार्क जाओ कभी, बारिश का मौसम अच्छा है, पेड़ को देखो. और being basically the fourth point is being present in what you do. Being present मतलब if you're eating prasad, for example when you're taking prasad, आराम से खाओ बाबा. प्रसाद खाते खाते मैसेज भी भेज रहे हो व्हाट्सएप में और टीवी भी, न्यूज़ भी देख रहे हो. अरे तीनों का आनंद, एक का भी आनंद नहीं आएगा. प्रसाद आराम से खाओ, उसको चू करो. बी प्रेजेंट इवन व्हेन टेकिंग प्रसाद. व्हेन चैंटिंग बी प्रेजेंट. डोंट चैंट, ड्राइव एंड वर्क सेम टाइम. सम पीपल कैन नॉट चैंट देयर 16 राउंड्स विदाउट पिंगिंग समवन एल्स. उसके बिना एक हाथ में बीड़ी बैग, एक हाथ में ये होना ही चाहिए. नहीं, दिस इज, यू आर नॉट प्रेजेंट विद द होली नेम. भला माला कम करो बट बी प्रेजेंट इन व्हाट यू डू. सो व्हाट इज द फर्स्ट आई सेड? प्रेयर, प्राणायाम, पेन डाउन, प्रेजेंट. ये सब बहुत प्रैक्टिकल है. और पांचवा, फोन स्टे अवे. मोबाइल दिन में 3 बार यूज़ करना है. जैसे गायत्री हम ब्राह्मण लोग करते हैं, सुबह, दोपहर को, रात को करते हैं. तो मेरा मोबाइल का भी ऐसा रूल है. दिन में 3 बार, सुबह 7 ब्रेकफास्ट के समय उसको ऑन करता हूँ. फिर ब्रेकफास्ट के बाद आराम से चेक करता हूँ, मैसेज रिप्लाई करता हूँ. फिर लंच के समय ऑन करता हूँ. लंच के बाद देखता हूँ क्या है. फिर शाम को 6:30 बजे के करीब देखता हूँ. आप बोलोगे प्रभु ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, इम्पॉसिबल. अरे इम्पॉसिबल कैसा? अरे हम कॉलेज में थे, बिना मोबाइल का हमारा पूरा, वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिग कॉलेज फेस्टिवल्स. ये अभी जो फेस्टिवल्स चल रहा है बड़ा, ये पहले नहीं होता था क्या? 20 साल पहले विदाउट मोबाइल फोन नहीं होता था? होता है, सब कुछ अच्छा होगा. हम लोगों ने माइंड में ना, वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली, वी डिपेंड ऑन मोबाइल फोन. मुझे याद है जब मोबाइल नया आया था, मैं कुछ लड़कों को लेके हर 2 महीने में जू जाता था राधा बिहारी मंदिर. पूरा प्लानिंग अच्छे से होता था. ठीक है, 4:30 बजे यहाँ मिलेंगे, फिर प्रभात घर पे जाएंगे, उधर ये करेंगे, उधर प्रसाद लेंगे, एवरीथिंग स्मूथ. फिर मोबाइल का कल्चर चालू हो गया. उसके बाद वैसे ही एक ग्रुप को हम लेके जा रहे थे. तो मेरे साथ जो प्रभु जी थे वो मेन ऑर्गेनाइजर थे. वो पहले भी ऑर्गेनाइजर थे. और उस दिन जब हम जा रहे थे तो कॉन्स्टेंटली फोन. हाँ प्रभु किधर आ गए आप लोग? गेट पे. अच्छा आप ऊपर जाके बैठो, मैं आ रहा हूँ. फिर आधे घंटे बाद, अच्छा कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. और 2 लोग कहाँ हैं? कॉन्स्टेंटली टॉकिंग ऑन द फोन and trying to coordinate the whole thing. And I was telling him, come on, couldn't you have planned properly so that you are peaceful in this whole journey? नहीं प्रभु, पर इंपॉर्टेंट है प्रभु, वो लोग गुम हो जाएंगे. मैं बोला एक मिनट, अगर मोबाइल आता ही नहीं था इंडिया में तो क्या करते थे? सी आवर जनरेशन हैज ग्रोन अप विदाउट मोबाइल्स. तो नाउ अभी जो मॉडर्न बच्चे हैं वो लोगों को मोबाइल के बिना, वो 4 साल के बच्चे भी पूरा दे नो व्हाट टू डू. सो दे विल ग्रो अप बिकमिंग, दे कैनॉट लिव विदाउट मोबाइल फोन. बट देर आर पीपल हु हैव लिव्ड विदाउट मोबाइल फोन बाबा. आप सोचो, ऐसा नहीं है हमारे. यू थिंक देर आर नॉट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज्ड?
whether it is Oscar award ceremony or whether it is organizing a big a big president of America coming to India event. All these top events cannot be organized without mobile phones constantly ringing. So we have put ourselves in illusion, and this is highly passionate. The radiation जो एनर्जी है इसका मोबाइल्स का, और आजकल मोबाइल में सब कुछ है, टॉर्च और अलार्म से लेके मूवीज एंड ईमेल्स एंड व्हाट नॉट. So it's a disaster in the making. So our lives are extremely in the mode of passion and ignorance. If we want to be in mode of goodness, we have to do some revolutionary changes in our lifestyle. And this means little pain. एतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्. अमृत का आभास होगा, पर पहले थोड़ा एक तपस्या करना होगा. कुछ नहीं होगा, आपका सब व्यवसाय अच्छा चलेगा, आपका नौकरी अच्छा चलेगा, आपके संबंध भी उल्टा अच्छे हो जाएंगे, मोबाइल थोड़ा कम यूज होगा तो. यू कांट कन्विंस मी दैट विदाउट मोबाइल फोन्स our lifestyle will be negatively affected. You can't convince me about that. Because I have lived without mobile phones. Before coming to ISKCON, 96, 98 में हमारे पास मोबाइल नहीं था. But we used to plan, organize nicely. Anyway, these are 5 my suggestions. Please try this, see if it works. Basically the idea is सत्वगुण is possible when we slow down. थोड़ा तो slow down करना पड़ेगा mind. थोड़ा silent रहना पड़ेगा. And little clean. Slow, silent, clean. थोड़ा ऐसा रहेंगे तो सत्वगुण में easy है रहना. Basically ना what we can do is, we can, after we go back from here today, we can start one exercise. Whenever you feel little uncomfortable, थोड़ा होता है ना, ऐसा कुछ तो आपको लग रहा है, तो थोड़ा अपने आप को कभी कभी awareness करो. Awareness, what is happening right now? ऐसा pause. What is, which mode is influencing me right now? Awareness एक बार आ गया ना, then immediately you can come to सत्वगुण. And you come to सत्वगुण. सत्वगुण के लोगों का they always avoid 3 things. If you want to be in सत्वगुण, you have to avoid 3 चीज़ों को हमेशा अवॉइड करने का. एक जजमेंट, जो कॉन्स्टेंटली जजिंग करता रहता है ना, वो सत्वगुण में नहीं रह सकता. ये बैड, ये डीमन, ये गुड. You have to separate observation from evaluation if you want to be in सत्वगुण. If you are constantly judging and analyzing, you cannot be in सत्वगुण. You have to be present. अभी देखो जर्नी होम, जो जर्नी होम पढ़ा है आपने, जर्नी होम बुक में ऑथर लिखते हैं 1971 की बातें 2009 में लिख रहे हो. वो पेड़ कैसा था, वो कपड़ा क्या पहना था, उसका चेहरा कैसा था. हाउ कुड ही राइट ऑल दिस? बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट. ही वॉज देयर. व्हेन ही वॉज इन दिल्ली कनॉट सर्कस, ही वॉज देयर. व्हेन ही वॉज विद सीताराम बाबा, ही वॉज देयर. So we are not present. We think one thing, we speak second thing, we feel third thing, and we do fourth thing. So this is the first thing we have to avoid: judging, analyzing constantly. And second, control. सत्वगुण वाले कंट्रोल नहीं करते. Controlling tendency is completely against सत्वगुण. Control. This is environment is in my control. No, just relax. This person is in my control. Controlling tendency, judging tendency, and fear. सत्वगुण वाले कभी fearful रहेंगे, आप सत्वगुण में नहीं रह सकते. Always fearful. अब क्या होगा, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा प्रभु जी ने ऐसा बोला, मतलब उसने ऐसा सोचा, उसने उसको ऐसा बोला, उसने फिर उसको ऐसा बोला, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में ऐसा गलत बोल रहे हैं. This person is miserable. He will never be in सत्वगुण. सत्वगुण वाला कैसा रहता है जनरली? ही विल बी प्रेजेंट इन वॉट ही इज डूइंग. ही विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल. एक ग्रेटफुल मूड रहेगा. यू विल ऑटोमेटिकली बी, सी हैप्पीनेस इज, ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू हैप्पीनेस मटेरियल वर्ल्ड में. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली ग्रेटफुल, देन यू विल बी हैप्पी. एंड थर्ड, कंट्रोलिंग टेंडेंसी, जजिंग टेंडेंसी से निकलना है, तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिटैचमेंट. डिटैच मतलब ठीक है, आज मैंने बहुत बड़ा प्लान किया था, आज ये 4 काम करूंगा प्लान किया था, एक ही काम हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं. रिलैक्स, डिटैच, लेट गो, लिव फ्री. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग इररेस्पॉन्सिबल. एक गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अरे कुछ नहीं करने का, चलो, ऐसा नहीं. यू शुड नो व्हेन टू नो दैट यू हैव टू बी डिटैच्ड, बिकॉज लाइफ इज नॉट इन आवर हैंड्स.
पूरा प्लानिंग किया आपने, ये करूँगा 5 का, और ट्रैफिक जाम में अटक गए तो गाली देते रहेंगे ट्रैफिक जाम। सत्वगुण वाला क्या करेगा? ही विल जस्ट रिलैक्स, लेट गो, ही विल डू सम चैंटिंग, ही विल ही विल जस्ट गो इनवर्ड. रजोगुण वाला विल honk, fight. Tamogun wala will keep lamenting. So basically these are very important things. If you can avoid a lifestyle centered on controlling, judging and fear. 99% of the world, people in this world are always in fear. Always in fear. So the solution, antidote, or the way we can be in Sattvagun is if we consciously are aware and we try to be always grateful, present in what we are doing, whether it is taking prasad or even taking bath or chanting Hare Krishna. हर चीज में be present. And third is, छोड़ दो, क्या लेके जाओगे आपके साथ? मृत्यु के समय सब कुछ तो छोड़ना ही है. तो थोड़ा बहुत अपने जीवन की जो हमारे जो योजनाएं हमारे अनुसार नहीं चलती हैं, जस्ट रिलैक्स, गिव इट अप. So Sattvagun is very easy to live in, but unfortunately Sattvagun is also a big trap. How Sattvagun is a trap, that we will discuss next time. And how we can go to a level higher than Sattvagun, oh, I could have discussed today, but I thought first let us all come to Sattvagun. तो तमोगुण से अगर सत्वगुण के ऊपर जाने का बोला तो जितना ऊपर, जितना वो रजो, ही विल गो इन अ मैड फ्रेंजी एंड देन उसी स्पेस से वो तमोगुण में आएगा फिर. तो ऐसा हुआ है पहले, कंप्लीटली ड्रंकर्ड और इनटू ड्रग्स. ये हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा मस्त है, चलो हरे कृष्णा. वो पूरा घर पे जाता था, पूरा लंबा लंबा बाल पहन के, पूरा ड्रग्स के साथ. हरे कृष्णा में आया, एक दिन में शेव कर लिया, पूरा चकाचक हरी बोल. घर पे गया, पिताजी शॉक, उसके माता पिता, अरे कल तक ऐसा था, आज ऐसा हो गया. देन आफ्टर फ्यू ईयर्स वो भी छोड़ दिया. Extreme behavior will not help. So let us go to Krishna first by, we have to go beyond Sattvagun, but let us first come to Sattvagun. है ना? हमारा गोल एयरपोर्ट में रहना नहीं है, हमारा गोल है फ्लाइट लेके जाना है. पर पहले एयरपोर्ट तो आना पड़ेगा आपके घर से, तो अभी एयरपोर्ट में आ जाओ. तो नेक्स्ट वीक विल डिस्कस हाउ टू एक्चुअली बोर्ड द फ्लाइट. So that is the topic for next week. We have discussed 10 verses today. And from next week onward, we'll discuss 11th verse. But today, any questions regarding the 3 modes of material nature? Then we discussed solutions or practical tips on being in Sattvagun. What are the few things we could do? Prayer, pranayam, pen down, being present and being away from phone. And what else? Being little clean, little slow. ये फ़ोन का ज़रा आप नोट करो. मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ जिस दिन मैंने फ़ोन थोड़ा, इट इज़ अ ट्रैप. हाँ, इट्स अ बिग ट्रैप. वो हो गया है हमारा, आवर हैंड्स, फिंगर्स हैव बिकम एडिक्टेड कॉन्स्टेंटली. स्मार्टफोन ऐसा करते रहते. यू फील लिबरेटेड. और क्या होता है सत्वगुण में जब रहते हैं ना, you actually feel more freedom. Mind has more freedom, more clarity. Was in the middle of the class I mentioned ना कि we need तमोगुण also. मैंने कहा ना कि तमोगुण भी जरूरत है. अगर तमोगुण नहीं रहेगा, if you cannot use तमोगुण, क्या होगा? आपको रात को नींद नहीं आएगी. तमोगुण का भी हमारे जीवन में जरूरत है, वैसे रजोगुण का भी जरूरत है. तो आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रजोगुण. क्या एग्जाम्पल दिया? प्रीचिंग. हमारे जब प्रीचिंग शुरू किया था हमने, कांग्रेगेशन प्रीचिंग, तो हम लोग क्या क्या करते थे, JOSD कोर्स, रात को लेट बात करना, प्रीचिंग करना, कन्विंस करना, ऐसा रजोगुण में करना पड़ता है. बट वी शुड नो व्हेन टू. अभी मॉर्निंग का जो टाइम है, ऑफिस जा रहे हैं आप, वो रजोगुण का, दैट्स अ गुड टाइम टू वर्क, अर्न मनी, डू थिंग्स. बट व्हाट वी आर सेइंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनहेरेंट, बेसिक हमारा जो फाउंडेशनल लाइफ है, दैट हैज़ टू बी प्राइमरीली इन द मोड ऑफ गुडनेस. एंड वो सिचुएशन में रह के यू यूज़ द अदर 2 मोड्स. बट अगर आपका प्राइमरी लाइफ इज इन, इफ यू आर फंडामेंटली
रजोगुण वाला व्यक्ति, तो बहुत डिफिकल्ट है सत्वगुण में आना, जपा भी बेकार होगा। तो सुबह का टाइम में करो कम से कम सत्वगुण में, तो बाकी पूरा दिन जो रजोगुण तमोगुण में तो आप रहेंगे ही, वो तो डिफॉल्ट सेटिंग है। रजोगुण तो अपना डिफॉल्ट सेटिंग है, बिकॉज कृष्णा, व्हाट इज द 10th verse, व्हाट इज कृष्णा से? The modes always pull you for, they fight for supremacy. So rajogun and tamogun will always pull you down. तो default setting, let us keep ourselves in सत्वगुण, क्योंकि वो जाएगा ही नीचे। पर अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे सत्वगुण में रहने का, तो अगर रजोगुण में रहेंगे तो फिर तमोगुण में जाएंगे। तो ये पूरा क्लास का उद्देश्य ये नहीं कि आप नौकरी मत करो या पैशनेटली अर्न मत करो। होल आइडिया इज ट्राई टू गेट सम सत्व, एड सम सत्व इन योर लाइफ, and because it happens with the best of the whole energy is so contaminated, the best of sadhus can get affected by rajogun, so it is important। ऑफिस जा रहे हो आप तो नौकरी करना पड़ेगा, मेहनत करना। अर्जुना was fighting, तो वो सत्वगुण का जरूरत पड़ता है उस समय। It is Shuddha Sattva, that is we'll discuss next time, how to be absorbed in Krishna and all that. But essentially, a drama करते हैं हम devotees का। Drama is what? अरे you have to perform action, but it is for Krishna. So if you are earning money, you are invoking passion, but that passion will help you transcend the 3 modes. If you are remembering Krishna, if you are aware of it being for Krishna. But if your whole day is in that way, like ऑफिस में भी फॉर एग्जाम्पल आप प्रसाद ले रहे, लंच का डब्बा खोल के खा रहे, उस समय काम मत करो साइमल्टेनियसली। हम गिविंग एग्जाम्पल, प्रसाद आराम से खाओ, आलू का सब्जी है, रोटी है, आपके घर पे ब्रजवासी प्रसाद बनता है, तो उसको आराम से कृष्ण को याद करते हुए खाओ। 10 मिनट प्रेम से प्रसाद जाने दो अंदर। उस समय भी आप ऑफिस का काम कर रहे, मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे, अरे एक सुख है वो प्रसाद का, वो आराम से उसको अनुभव करो। फिर व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर कलीग, बी प्रेजेंट विद हिम, गिव योर अटेंशन टू हिम। So even in the midst of rajogun office environment, you can be peaceful. It's a state of the mind. Actually, it's an inner state. It's not simply the action. Because these desires, if you can regulate your internal desires, then you are in sattvagun. Asha nama manusyanam kaschid आश्चर्य श्रृंखला यथाबद्ध प्रदावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। क्या श्लोक है कि ये देखो दुनिया का ताजुब वो बता रहे हैं हमारे चाणक्य जी। हाँ, आश्चर्य, व्हाट इज दैट? आशा नाम, व्हाट इज दैट श्लोक? वो बिगैन स्पॉन्टेनियसली रिमेंबर्ड। आशा नाम मनुष्यानाम कश्चिद आश्चर्य श्रृंखला। ये आश्चर्य नाम की रस्सी को देखो, आशा नाम के रस्सी को देखो। हाँ, आशा नाम मनुष्यानाम, मनुष्य को कश्चित आश्चर्य श्रृंखला, किस तरह से इस आशा नाम के रस्सी ने बांध के रखा है मनुष्य को। ये देखो आप, ऐसा करके बता रहे हो कैसे बांधा है। यथाबद्ध प्रदावंती, जो इस रस्सी से बंधा है, कौन सी रस्सी से? आशा नाम के रस्सी से जो बंधा है वो सब जगह भाग रहा है। मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत, और जो इस आशा नाम के रस्सी से मुक्त है, रस्सी नहीं है, वो एक जगह पे शांति से बैठा है। तो हमारा जीवन ऐसा है, हम पूरे रजोगुण में भाग रहे इधर उधर। एक्चुअली वी आर बाउंड, वी आर नॉट रियलाइजिंग वी आर बाउंड, बट वी आर रनिंग थिंकिंग आई एम फ्री। वी आर नॉट फ्री, वी आर फूल्ड। एक्चुअल फ्रीडम इज व्हेन योर माइंड इज इन मोड ऑफ गुडनेस। इट्स लाइक अ काउ, काउ को अगर आपने बड़ा खुला जगह में छोड़ा, उसके पास पूरा 10 एकड़ का जमीन है घास चरने के लिए, दूसरे गाय को 50 मीटर का लंबा रस्सी बांध के रखा, उसके पास कम स्पेस है, और तीसरे गाय को 10 मीटर का रस्सी ने बांध के रखा है, तो उसके पास और कम स्पेस है। तो यू आस्क योरसेल्फ, आपके पास कितना स्पेस है माइंड में? हाउ मच आर यू फ्री? वी आर, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट फ्री, वी आर टाइटली बाउंड। सो ये आशा, जो डिजायर्स, एम्बिशंस, let us dovetail it to Krishna, let us be more connected to Krishna, and with the mode of goodness lifestyle is the first step in that, of getting up early, doing little yoga, pranayam, chanting, prayers, spending some quality time with your family. I was telling one devotee,
He was telling his child is growing up. I said, जाओ बेटे को लेके जाओ आइसक्रीम खिलाओ बाहर. अरे प्रभु, that is, Maya. I said, yeah, I know but it's acceptable form of Maya. You are a grahastha. You have a young 7-year-old son who is exploring life. He has got, he's excited. उसको थोड़ा दिखाओ, दुनिया दिखाओ. Show him the aquarium. थोड़ा let his mind expand. Let him be happy. Don't go crazy. So थोड़ा life balance जियो. So we go into extremes. भक्ति में extreme और जॉब में भी एक्सट्रीम. वो पैशन जो उधर कर रहे थे हम, इधर भी आके वही पैशन में हरे कृष्णा, एवरीथिंग एल्स इज नॉट. इट्स नॉट आउट ऑफ एक्चुअल फेथ इन कृष्णा. इट्स पूरा रजोगुण का प्रभाव है. वो सबको गाली देंगे, सबको रास्कल बोलेंगे, सबके झगड़ा करेंगे. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज इन द ऑफिस ऑल्सो यू कैन बी इन मोड ऑफ गुडनेस. इफ यू आर मॉर्निंग गेटिंग अप अर्ली, if you are a little balanced, if you do your prayers, if you have good association, if you allow good things to come inside, WhatsApp messages, आप filter करो आपके friend circles, groups, and then what comes in that influences. So I'm sorry, I have no adhikar to speak on this because I'm not working outside. So it may appear that I don't have ground reality ka. Yeah, I agree. So, but still I have friends who are able to do. And I also worked outside for 1 year. And yeah, it is difficult, I agree. But at least try to kar sakte. Because 7th chapter next week we'll discuss. Krishna says it's very difficult to overcome the 3 modes. The only way is when Krishna helps. Anyway, there's a lot of things to discuss next week. Thank you. So I'm happy you shared this. Actually, I also experienced hearing classes. But then I'll tell you how the passion got there also. उधर भी ना it's easy to get absent, as you said ना, planning करना है travel. तो मैं क्या करता हूँ, how I have used it to be in सत्वगुण. क्लास सुनने के बाद एक मेरा नोटबुक निकालता हूँ. I just to inhale, exhale, पूरा प्राणायाम थोड़ा 1-2 मिनट fresh, and then I write what I understood from that class. It is like वो पूरा अंदर चला जाता है. जो सुना वो पूरा अंदर डाइजेस्ट. बिकॉज वन यू राइट समथिंग, दैट राइटिंग मेक्स वॉट यू हियर और वॉट यू रीड योर्स. तो 1 पेज भी लिखा, 5-10 मिनट भी लिखा, तो 40 मिनट का क्लास रहेगा तो 50 मिनट का क्लास हो गया वो. 10 मिनट में आपने समरी अपने वर्ड्स में, तो इट मेक्स यू फील वेरी रिच. एंड आई हैव ऑल्सो सीन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टेंट इफ यू आर थिंकिंग होल डे, दैट इज रजोगुण. कॉन्स्टेंट एनालिसिस करते रहेंगे ना, उसमें भी थक जाता हूँ मैं. इफ माई बॉडी इज प्राइमरीली इन सत्वगुण, देन आई विल गेट एग्जॉस्टेड बाय दैट. तो क्या करने का, कभी कभी एज ए ना डिटैच. वो डिटैचमेंट से बहुत फायदा होता है. कभी कभी जस्ट लेट गो, बी प्रेजेंट. बुरिजन प्रभु राइट्स इन हिज बुक जपा, ही राइट सो मच अबाउट बीइंग प्रेजेंट. एंड ही सेज बुद्धिस्ट पीपल आर पॉपुलराइजिंग इट. इट्स एक्चुअली आवर स्ट्रेंथ. उनका कितना सारा बुक्स रहता है, बी हियर नाउ, पावर ऑफ नाउ, नाउ नाउ. दिस इज आवर स्ट्रेंथ. बी विथ कृष्णा. एक बार कीर्तन महाराज का बहुत लंबा चला, तो श्यामानंद प्रभु कुछ मैसेज लेके गए, महाराज अभी हमारा ये सेवा, ये मीटिंग है. महाराज, दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ यू, आर नॉट प्रेजेंट. द कीर्तन इज गोइंग ऑन, बी प्रेजेंट. सो आई एम हैप्पी यू शेयर्ड दिस प्रभु अबाउट द 3 prakriti. Maybe once we can call one Ayurvedic expert also here, and we can have a nice presentation on Vata, Kapha, Pitta, and in the 3 modes. I have one book actually, Ayurveda and the Mind, but I never got time to read it. Maybe we can have some presentation on that. Thank you.